بیٹھ کے اوپر کرو یار نوجوان آدمی ہو کیا ہوگا سب شروع کر دیں آج کل کے نوجوان وہ میکڈونلڈ کھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کریں جی. شروع کر سر شروع کر اللہ کرتے رہنے شروع کر جاوید بھائی مائک دے کر جاؤ کل سنو جی سر کیبن چھوڑنا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رات کے 12 بجے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا. جیسے ہی کوئی چوری کرنے جا رہا ہے یا ڈاکہ کرنے جا رہا ہے کہ آدھی رات کو جو ہے اس کا اعلان کیا گیا. خیر چوری ڈاکہ جو پچھلے 2 سال میں پاکستان کی معیشت پہ ڈالا گیا ہے اور غریب کی جیب پہ ڈالا گیا ہے تو یہ چوری ڈاکے والی لوگ ہیں اور ملک کی تباہی کے اوپر ڈیسک بجائے جا رہے ہیں. اندر صدر مملکت سو کال جو ہے نام نہاد وہ تمام تر اپنے عہدے کا آئینی جواز جو ہے وہ کھو بیٹھے ہوئے ہیں. ایک انہوں نے ریفرنس بھیجا, اس ریفرنس کے چیتھڑے اڑ گئے اور جس طرح قانونی اور آئینی اس ریفرنس میں سکم نکالے گئے, اس ریفرنس میں جس طرح نقائص نکالے گئے وہ آپ کے سامنے آپ لوگ ہم سے بھی بہتر جانتے ہیں. اس وقت معیشت اور تباہی کا جشن منایا جا رہا ہے 2 سالہ, اور ہر طرف جو ہے لمبی لمبی پریس کانفرنسز اور اشتہار لگائے جا رہے ہیں. ملک جو ہے ان سے 2 سال میں سنبھالنا تو بہت دور, یہ مائکرو اور میکرو ہر سطح کے اوپر ملک کو تباہی کی طرف لے کے ہیں. ان کے پاس اس وقت کوئی نہ حکومت کا جواز ہے اور انشاءاللہ تعالی اپوزیشن جو ہے وہ کو متحدہ لائے عمل عشورے کے بعد جو ہے اس کا اعلان کرے گی. آپ کے سامنے ہے ان کی کارکردگی. یہ میرے ہاتھ میں تقریر ہے پکڑی ہوئی صدر مملکت کی, جھوٹ کا پلندہ ہے. ان کی پرفارمنس پہ سوائے ماتم کرنے کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا. کرپشن کی جو داستانیں ہیں وہ زبان زد عام ہوئی ہیں. چینی اور گندم کی جو ڈاکہ پڑا ہے اس کے چور اور ڈاکو جو ہے ملک سے فرار کروا دیے گئے ہیں. ان ساری باتوں کے بعد جس نعرے کے اوپر, جس جواز کے اوپر ان کو حکومت میں لایا گیا تھا وہ جواز بھی ختم ہو چکا ہے. ان کا مزید حکمرانی میں رہنا, حکومت میں رہنا پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ بن چکا ہے. جس ملک کی معیشت تباہ ہو جائے اس ملک کی کوئی بات صحیح نہیں رہتی. گلی محلوں میں, بازاروں میں, دیہاتوں میں, شہروں میں, بڑے شہروں میں, چھوٹے شہروں میں, آپ جہاں پہ چلے جائیں عوام جو ہے ان کو گالیاں دے رہی ہے, عوام ان کا ماتم کر رہی ہے اور یہ یہاں بیٹھ کے ڈیسک بجا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی پاکستان کی جو اپوزیشن ہے پارلیمنٹ کے اندر اس نے پچھلے 1 سال میں بھی اور اس سے پچھلے سال میں بھی اس حکومت کا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اگر ملک کو بچانا ہے, اس ملک کو دوبارہ ترقی کی راہ پہ ڈالنا ہے, نہ ان کی خارجہ پالیسی ہے. وزیر اعظم کے دفتر میں پتہ نہیں بیوروکریٹ نے مارا ہے اس کو, وزیر کو, کہ وزیر نے بیوروکریٹ میں آپس میں فیصلہ کر رہے کس نے کس کو مارا ہے, بتا دیں پھر جان. تو جب یہاں آپ کس نے مارا ہے؟ چل یہی رہا ہے کہ وزیر نے مارا. وزیر نے مارا ہے. چلو تو کم از کم وزیر کا اپر ہینڈ تو رہا ہے نا. چلو ٹھیک ہے. تو یہ جب حالات ہوں وزیر اعظم کے دفتر میں, وزیر اعظم کے دفتر میں اگر یہ حالات ہوں تو ملک کے کیا حالات ہوں گے, آپ اس سے اندازہ لگا لیں. بہت بہت شکریہ. میں راج صاحب سے بسم اللہ
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसा कि हम सब के इल्म है ये बात कि सदारती खिताब जो है वो एक आइनी मामला है और आइन की एक रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है कि हर साल जो है वो सदर मुमलकत पार्लियामान में आकर खिताब करते हैं और वो हुकूमत के जो भी मामलात हों उस साल के, उस पर उनको जो है वो ब्रीफिंग दी जाती है और फिर वो आज खुद भी कोई हदायत जारी करते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, जिस तरह ख्वाजा साहब ने कहा कि आधी रात तक तो हमारे इल्म में ये बात नहीं थी कि आज कोई इजलास होने जा रहा है, मुश्तरका इजलास होने जा रहा है और सदर मुमलकत उससे खिताब फरमाएगी। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस हुकूमत पर कि क्या वजह है कि मेंबरान ने कराची से आना है, क्वेटा से आना है, दूर दराज जगहों से उन्होंने पहुंचना है, तो उनको इतना शॉर्ट नोटिस क्यों दिया गया और इस इजलास बुलाने की एमरजेंसी क्या थी, किस वजह से इतनी उजलत बरती गई। तो जब वो तकरीर देखी जिस तरह ख्वाजा साहब ने कहा, तो वो तकरीर पढ़ने के बाद मुझे तो कम से कम ये एहसास हुआ कि ये किसी और हुकूमत और किसी और मुल्क की बात हो रही है। ये पाकिस्तान की बात तो कोई भी उस तकरीर में नहीं थी, उसमें तो सब हरा हरा दिखाने की कोशिश की गई और ये बताया गया कि ये मौजूदा हुकूमत जो है ये नहायत ही कामयाब तरीन हुकूमत है, उसने अवाम के मसाइल हल करने का बेड़ा उठाया हुआ है और बहुत बड़ी कामयाबियों से उन्हें पाकिस्तान के अवाम को और मुल्क को हमकनार कर दिया है। आप खुद सोचें, पाकिस्तान के अवाम इसका जवाब दें कि क्या इससे ज़्यादा नाहिल, नाकाबिल और बेकार हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई, मैं समझता हूँ शायद दुनिया में ना आई होगी, जिसने पाकिस्तान का नाम डुबो दिया है, पाकिस्तान के अवाम पर जीना महाल कर दिया है। वो नौजवान जिनको कल ये नारा देते थे कि तब्दीली की गवर्नमेंट आएगी तो उनके लिए 1 करोड़ नौकरियां लाएगी। मैं आज सदर मुमलकत से ये पूछना चाहूँगा कि आप आए आज पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में, जो पूरे पाकिस्तान का नुमाइंदा इजलास है, उसमें आकर आपने उन नौजवानों के सवाल का जवाब दिया जो आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले खड़े होकर ये सवाल कर रहे हैं कि वो 1 करोड़ नौकरियां का जो वादा किया गया था वो कब पूरा होगा। 2 साल गुजरने के बाद वो 50 लाख घरों का वादा कहाँ गया। जो महंगाई को कंट्रोल करना चाहते थे, जो गरीब के चूल्हे जो है वो जलाना चाहते थे, वो महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही। आम आदमी जो है वो 2 वक्त की रोटी से लाचार हो चुका है, 2 वक्त की रोटी से। मुझे ये बताएं क्या सदर मुमलकत जो पूरे पाकिस्तान के सदर हैं, जिनका एक आईनी ओहदा है, उन्होंने अगर आकर तहरीक इंसाफ के कारकुन की तरह हाँ में हाँ मिलानी है तो वो फिर सदर मुमलकत का खिताब नहीं है, वो किसी एक PTI के कारकुन का इंतखाब जो है वो खिताब तो हो सकता है, जिसमें एक भी बात हकीकत पर मबनी नहीं है। आज पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी देखें कहाँ खड़ी है। आज देखें पाकिस्तान जो है वो दुनिया में तन्हाई का शिकार हो रहा है और देखें यहाँ क्या हो रहा है। वजीर खारजा जो है वो, जिस तरह ख्वाजा साहब ने कहा, वो उनके क्या लक्षण हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो थप्पड़ मार रहे हैं, थप्पड़ खा रहे हैं, इस बहस में हम नहीं पड़ते। लेकिन शायद ये पहली दफा हुआ है कि हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी, हुकूमत और अवाम, हुकूमत और बिजनेसमैन, 2 मुख्तलिफ ऐसे 2 इलाकों में खड़े हैं जहां एक दूसरे के साथ उनका कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि आज पाकिस्तान की अपोजिशन ने बिल्कुल ठीक फैसला किया। हमारे पास 2 रास्ते थे, या वहां बैठकर हम वो तमाम बातें सुनते जिनका हकीकत के साथ कोई तल्लुक नहीं है, जो सिर्फ कलम से निकली हुई बातें तो हो सकती हैं, सरजमीन पर उनका कोई निज़ाम ही नहीं है। पाकिस्तान के अवाम को धोखा देने की बातें हम खड़े हो बैठकर सुनते, वहाँ पाकिस्तान के साथ जो झूठ बोला जाए वो हम बैठकर सुनते।
पाकिस्तान के साथ सरियन धोखा हो रहा है, पाकिस्तान के नौजवानों के साथ धोखा हो रहा है, पाकिस्तान के आम लोगों के साथ धोखा हो रहा है कि भाई वो हम वहाँ नहीं, हमारी मिताब नहीं थी कि हम बैठकर ये लफ बातें सुनते, इसलिए हम बाहर आ गए हैं और आकर आवाम को ये बात बताना चाहते हैं कि जो ये खिताब हो रहा है ये एक ज़रूरत थी पार्लिमान की, इसके अलावा इसकी कोई वक़्त नहीं है। और जो कुछ भी कहा जा रहा है वो सरियन झूठ पर मबनी है। पाकिस्तान मुश्किल का शिकार है, पाकिस्तान एक भयानक दौर से गुजर रहा है, पाकिस्तान के अवाम बहुत मजबूर किस्म के हालात से गुजर रहे हैं। हमारी जमहूरियत जो है उसको ऊपर बड़े सवालिया निशान उठ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है। ये ऐसा एक दौर है जिससे जिस कदर जल्दी जान छुड़ाई जाए उतना ही ज़रूरी होगा। पाकिस्तान की अपोजिशन मुतहद है और जिस तरह कहा गया है कि बहुत जल्द उसमें एक लाया अमल होगा। और मैं समझता हूँ आज भी ये जो बैठे हुए हैं ये कोरोना का दुआ दें, ये कोरोना की वजह से बैठे हुए हैं, वरना शायद पाकिस्तान के अवाम तो उनको ये टाइम भी देने के लिए तैयार नहीं थे। और इंशाअल्लाह ताला हम जदोजहद जारी करेंगे, हम पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं, हमारी बात जो है वो पाकिस्तान की अवाम की बात है। शुक्रिया। सर ये बताइए कि जिस तरीके से आरिफ अलवी नामी शख्स ने यहाँ पर अपना बयान जारी किया है, उसके जवाब में अपोजिशन क्या सोच रही है कि वो वाइट पेपर इशू करे ताकि लोगों को असल हकीकत हाल भी ब्लैक एंड वाइट में मिल जाए। और दूसरा ये जो तासुर दिया जा रहा है कि अपोजिशन के रैंक्स में यूनिटी नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, आप एक मंजे हुए मैं समझता हूँ कि कलमकार हैं और बहुत अच्छा आप लिखते हैं। हकीकत क्या है, पाकिस्तान के अवाम को अल्लाह ताला ने बड़ा शऊर अता किया है। पाकिस्तान का बच्चा पाकिस्तान का हर शहरी वो इनको समझ चुका है और उसको अफसोस है। आज आप देखें सोशल मीडिया पर जाएं तो लोग कहते हैं मैंने पीटीआई को वोट दिया था लेकिन मैं शर्मिंदा हूं। आज इस वक्त आप यही अपना कैमरा लेके जाएं, ज़रा बाजार में जाएं और पूछें कि क्या आप पीटीआई के साथ हैं तो वो आपको जवाब देंगे। लोग मायूस हो चुके हैं और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अपोजिशन मुतहद है। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है, हम जमहूरियत चाहते हैं इस मुल्क में। हम चाहते हैं कि इस हुकूमत से जितनी जल्दी छुटकारा मिले वो पाकिस्तान के हक में है, वो हम अपना फ़र्ज अदा करेंगे। शुक्रिया। आज आप लोगों की अपोजिशन फिर बैठी हुई है, मौलाना साहब का ग्रुप वहाँ पर है, आप लोग यहाँ पर है, आप लोग खुद इत्तेहाद नहीं, बात हम एक ही कर रहे हैं, वो हमसे पहले आगे थे लेकिन मेरा ख्याल था कि यहाँ आप ज़्यादा हैं तो फिर हमने यहाँ भी बात कर ली। दूसरा सवाल ये है कि अपोजिशन जो है वो एक बहुत भारी भरकम अपोजिशन है जो नज़र आ रही है, जिसमें नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, JUIF है, दूसरी है। लेकिन आज तक 2 साल जो पार्लिमानी साल गुजरे हैं, आपने कोई बड़ा आपका मुजाहरा, कोई हुकूमत को टफ टाइम, कोई आप पब्लिक के अंदर नहीं गए, इसकी वजूहत क्या है? देखें जी, ACC के ऊपर आपका इत्तेफाक राय नहीं देखें, हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम ये चाहते थे कि पाकिस्तान के अवाम के सामने इनका असल चेहरा सामने आए, पाकिस्तान के लोग इनके करतूतों से वाकिफ हो जाएं। इन्होंने बड़े बुलंदो बाग दावे किए हुए थे। एक दावा जो है उस पर आज भी लोग मुझसे सवाल करते हैं, ये कहा करते थे कि हमारे मुल्क में बाहर से लोग आकर मजदूरी किया करेंगे, अंग्रेज आया करेंगे, यहाँ कैमरा मैन आधे अंग्रेज खड़े होंगे, ये बताते थे, हमारे पासपोर्ट की बड़ी इज्जत होगी। और आज हालत ये है कि पाकिस्तान में कई लाख लोग इन्होंने खुद बेरोजगार कर दिए। तो ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि इनकी कारकर्दगी अवाम के सामने आनी ज़रूरी थी। अब अवाम इनको समझ चुके हैं और पाकिस्तान की जो अपोजिशन की आपने बात की है, हम मुतहद हैं और हम इस 1 पॉइंट एजेंडे पर मुतहद हैं और मुतफिक हैं कि इमरान खान और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। बिल्कुल। ये बताइएगा सर कि आपने कहा कि ये कोरोना की वजह से यहाँ बैठे हैं, कोरोना के दौरान और उसके बाद भी आप दोनों जो बड़ी सियासी जमातें आपने तो कंधे फराहम किए, जितनी लेजिस्लेशन हुई मुश्तरका इजलास में या कौमी असम्बली में, वैसे अकेले आप दोनों जमातों हमने हर उस लेजिस्लेशन को का साथ देने की कोशिश की जो पाकिस्तान के हक में, वो पाकिस्तान की खातर हम जो है वो अब भी करेंगे, लेकिन इनके लिए नहीं। इनके पास तो पाकिस्तान का एजेंडा ही नहीं है भाई, इनके पास तो पाकिस्तान की लेजिस्लेशन ये लाए ही नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भी लेजिस्लेशन होती है हम उसमें बाकायदा आपस में बैठकर ये फैसला करते हैं, अगर ये पाकिस्तान के हक में है तो हम उसका साथ देते हैं, अगर पाकिस्तान के हक में नहीं है और तो हम दूसरी बात दूसरी बात है कि मैं आपको बताता हूँ कि इनमें इन तमाम लेजिस्लेशंस में
अगर आप इसका ओरिजिनल मुसव्वदा देखें इन बिल्स का, वो इतना ज़्यादा खौफनाक था, इतना ज़्यादा खौफनाक था कि आप सोच भी नहीं सकते। ये मुत्तहिदा अपोजिशन की, जिसमें JUI भी शामिल है, हमारी तरामीम से वो उसकी कोई इंसानी शक्ल उसकी उनका कानून की सामने आई है। इसमें कोई कंधा प्रोवाइड करने वाली बात नहीं है, बल्कि हमने अपने जोर के ऊपर अपनी जो अददी हमारी जो है इस वक्त पोजीशन जो है उसके जोर के ऊपर हमने मजबूर किया कि आप इन कानून को जो है बजाय इसके कि आप फैटफ के कवर के अंदर आप जो है अपोजिशन को क्रश करना चाहते हैं, अपने मुखालफों को क्रश करना चाहते हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह करना चाहते हैं, आप इन कानून को फैटफ के ज़रूर जो है रिक्वायरमेंट पूरी करें, लेकिन इसको इंटरनली जिस तरह नैब का कानून यूज़ हो रहा है उस तरह ना ये यूज़ हो। एक आखिरी क्वेश्चन दोनों बड़ी जमातें खड़ी हुई, ये बताइएगा कि इस वक्त हुकूमत और आवाम दोनों पूछ रही है कि अपोजिशन का ये कहना था कि ईद के बाद APC होगी, APC क्यों नहीं हो रही? पर्टिनेंट क्वेश्चन और जो शॉर्ट्स है प्रीसाइज आंसर देते हैं। इस वक्त हुकूमत और आवाम तो नहीं, इस वक्त तो सिर्फ आप ही पूछ रहे हैं। चले आप बताइए क्यों नहीं हो रही सर? मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला APC होगी और वो भरपूर APC होगी और उसमें किसी किस्म का इब्हाम नहीं है। वक्त और जो है वो जगह का तयन जो है वो कमेटी करेगी, राहबर कमेटी जो है उसका मीटिंग होगी और उसमें तमाम मामला जो हैं वो सामने APC अभी हुई नहीं है तो बाइकाट किस तरह? बाइकाट का ऐलान ही नहीं हुआ तो बाइकाट कहाँ से हो गया? ये पेशस मर्ग मामला क्यों कर रहे हैं आप? शहबाज शरीफ साहब आज इजलास में शिरकत के लिए क्यों नहीं आए? तो आप देखें शहबाज शरीफ साहब भी नहीं आए, बिलावल साहब भी नहीं आए, तो अब हम तो हैं ना। रात 12 बजे बता रहे हैं बिलावल साहब कराची से कैसे आए बताएं? ये तासुर है कि हुकूमत बड़ी बदतरीन है, यही तासुर है कि जो अपोजिशन है ये भी तारीख की सबसे बदतरीन अपोजिशन है, जिसने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। अपोजिशन ने आवाम के लिए कुछ नहीं करना होता भाई, ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। हुकूमत रुला रही है 2 साल से और अनकरीब जिस तरह से ये सूरज गरूब हो रहा है ना, ये वाला सूरज भी गरूब होने वाला है, फिक्र नहीं करें। कि हम कंधा दिए हुए अच्छी तरह ये बावर करना चाहते हैं कि कंधा किसी को नहीं दिया हुआ। कंधा अगर अपोजिशन ने दिया है, हम रास्ते में खड़े हैं उन मुज़िर कवानीन के जो ये लाना चाहते थे। ना ये फाटफ की आड़ में आमराना बदतरीन कानून ला रहे थे, उसकी इस्लाह करना हमारी जिम्मेदारी है। नहीं करते तो आप हमसे पूछते कि आपने क्यों नहीं किया है, नहीं करते तो आप हमसे पूछते कि किसने हमारी तहफ़्फ़ुज़ की है, नहीं करते तो आप हमसे पूछते कि क्यों पाकिस्तान का इस तरह इस्तेसाल हुआ है। मैं आखिरी बात आपसे ये कहना चाहती हूँ कि 2 साल इन्होंने कहा आने से पहले कि हम कशकोल तोड़ देंगे, 2 साल इन्होंने आने से पहले कहा हम मेरिट को बड़ी तरजीह देंगे, आने से पहले इन्होंने कहा कि हम करप्शन हटा देंगे, आने से पहले इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को खुशहाल बना देंगे, नौकरियां देंगे। आज बताइए मीडिया से लेके अवाम का इस्तेसाल हो रहा है कि नहीं? कशकोल पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा नहीं हुआ है जितना आज है। इन्होंने जो कर्जे लिए हैं, पाकिस्तान को इन्होंने इतना मकरूज किया है कि इससे वापस लाना मुश्किल होगा। जो जिस नहज पर आके खड़े हैं उससे वापस लाना मुश्किल होगा। और जो समझता है कि अपोजिशन का किरदार इसमें मुस्बत नहीं हुआ है, तो भाई हम किस किस को खुश करें? हम मीडिया के साथ खड़े हैं जिसका मीडिया का इस्तेसाल हो रहा है, हम हर उस मजलूम के साथ खड़े हैं जिनका इस्तेसाल हो रहा है। और इस वक्त मुझे बताएं, खारजा पॉलिसी में इनकी मुल्क पार्लिमान अवाम सख्त तकसीम का शिकार है और इनकी अपनी काबीना तकसीम का शिकार है। खारजा पॉलिसी में इनके अपने वजीर कह रहे हैं कि ये इनकी पॉलिसी की धज्जियां बिखर गई। शी सेड इट इज़ इन टैटर्स। आप मुझे बताएं कि इस फिर मुल्क की साख क्या होगी? हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि जो इस वक्त केओस और इंतशार इनकी कैबिनेट में फैला हुआ है, ये पहले कभी पाकिस्तान ने नहीं देखा। ये इनकी तकसीम और नफरतों को फ़रोग देने की पॉलिसियां हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस वक्त इतनी बुरे हालात से गुजरा है। हम कश्मीर के लिए, कोविड के लिए और फाटफ के लिए
मुत्तहिद खड़े हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने एक दफा भी आके अपोजिशन की पार्टी से कोई इजलास नहीं किया, कश्मीर से नहीं के हवाले से नहीं किया, कोविड के हवाले से नहीं किया और FATF के हवाले से नहीं किया। हम अगर तरामीम नहीं करते तो आपको आलमी कुव्वतें आके उठा के ले सकती थी पाकिस्तान से। कवानीन देखें तो ये हमारा किरदार है, कंधा हमने पाकिस्तान को दिया है, इस हुकूमत को नहीं। पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के हालात को इस नहज पे पहुंचाने में सिर्फ PTI का किरदार है। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपसे कोई गैर मुतदिल बात नहीं करूंगी, ये जो सिर्फ सच है वो बता दीजिए। सच बताऊंगी। मैं जरूर कहूंगी पिछली हुकूमतों ने कर्जे लिए, पिछली हुकूमतें भी IMF पे गईं, लेकिन उनसे डिक्टेशन नहीं लिया। और एक लाल जो लकीर होती है, रेड लाइन जो है होती है, सुर्ख लकीर को कर्जों का कभी क्रॉस नहीं किया। इन्होंने 18 महीने में जो कर्जे लिए हैं वो पाकिस्तान की 72 साल की तारीख में नहीं लिए गए। तो आप बताएं ये कौन वापस करेगा? जो बाहर से आके पैराशूट आके इनके एडवाइजर्स बैठे हैं, ये आपके दौर में भी थे। किसके नहीं, लेकिन ये नहीं होता था। हम बीच में मुखिर होते थे, हम कहते थे नहीं पहले आपका क्या ख्याल है, आलमी ताकतें तो नहीं आपका ख्याल करेंगी, आपका काम है, हुकूमत का काम कि कहें कि ये नहीं हो सकता, हम इतना आपको देने तैयार है, इतना नहीं। आप देखिए इन्होंने गैस की कीमतें 225% बढ़ाई हैं, 225%। पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ी हैं, होती जा रही हैं रोज। आलमी मंडी में गिरी हुई कीमत और यहाँ बढ़ती जा रही है। तो ये कहाँ हुआ है? ये किस किस्म का इस्तेसाल है? मैं तो खुर्दोनोश की बात ही नहीं करूँगी, वो पहले करके गए हैं। लेकिन जो इन पर वाइट पेपर निकल सकता है, आप पूछे निकाल के आप क्या करेंगे? ये तो हंसते हैं, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है आवाम के मसलों में, इनको सिर्फ अपना प्रोटोकॉल चाहिए, जिसका इन्होंने कहा था ये कभी नहीं लेंगे, इनको सिर्फ प्रोटोकॉल चाहिए। और आप देखें, शुक्रिया।